ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ملک کے امور چلا رہے تھے، تبھی انہوں نے اوپر نگاہ اٹھائی اور دیکھا کہ پرندوں کا ایک جھنڈ ان کے سر کے اوپر پر پھیلا کر سایہ کر رہا تھا، لیکن ان میں سے ان کا محبوب پرندہ ہدہد غائب تھا۔ انہوں نے ہدہد کی تلاش کروائی لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر گھجبناک ہو گئے اور فرمایا، ہدہد یا تو فرار ہو گیا ہے یا پھر وہ خیانت کر بیٹھا ہے، اگر وہ مجھے ملا تو میں اسے جبہ کر دوں گا یا پھر اسے سخت سزا دوں گا۔ یہاں کہہ کر انہوں نے ایکاب نامی ایک جن کو ہدہد کی تلاش میں روانہ کیا۔ ایکاب تیزی سے سفر کرنے لگا، کچھ دوری طے کرنے کے بعد اس کی ملاقات ہدہد سے ہوئی۔ تب ایکاب نے اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے غضب کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اسے ان کی تلاش میں بھیجا گیا ہے۔ یہ سن کر ہدہد بولا، میں ایک مبارک خبر لے کر آیا ہوں جس سے حضرت مجھ سے بالکل ناراض نہیں ہوں گے۔ ایکاب نے پوچھا، بھائی وہ خبر کیا ہے؟ ہدہد بولا، وہ خبر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جا کر ہی سناؤں گا، چلو ہم وہیں چلتے ہیں۔ پھر دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جا کر مسکرایا اور عرض کیا، یا نبی اللہ، میں آپ کے پاس ایک نئی خوشخبری لے کر آیا ہوں، اگر آپ اسے سنیں گے تو یقیناً خوش ہو جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کی بات سن کر غصے میں نہیں آئے، بلکہ انہوں نے اطمینان سے ہدہد سے پوچھا، تم کون سی خبر لائے ہو؟ فوراً مجھے بتاؤ۔ تب ہدہد نے کہا، یا نبی اللہ، میں تھوڑے وقت کے لیے آپ کے تخت سے باہر گیا تھا، تبھی میں نے دیکھا کہ میرا ایک قبیلی بھائی پرندہ اڑ رہا تھا، میں نے اسے پکارا تو وہ میرے پاس آ گیا، ہمارے درمیان پرانے تعلقات کی باتیں ہوئیں، پھر ہم نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم کہاں رہتے ہیں۔ جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں رہتا ہوں تو میں نے آپ کے مقدس دربار کے بارے میں بتایا، لیکن اسے آپ کی حکومت کا کوئی علم نہیں تھا۔ تب میں نے کہا، تم ایسی سلطنت میں رہتے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی کوئی خبر نہیں پہنچتی۔ تب اس نے جواب دیا، میں ایک ایسی ملکہ کے ملک میں رہتا ہوں جو اتینت روپوتی، دیاوتی اور آرام پریہ ہے۔ ان کے ملک میں ہر کوئی شان اور امن کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ ان کا تخت عظیم اور بے حد خوبصورت ہے جو ہیرے، جمرد، موتی اور دوسرے بیش قیمتی جواہرات سے آراستہ ہے۔ وہ ایک ایسے شہر کی ملکہ ہے جہاں ہر دروازہ اور کھڑکی سونے اور چاندی سے بنی ہے۔ تب میں نے اس سے کہا، شاید ہمارے شاہنشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمہارے ملک کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، اگر انہیں علم ہوتا تو یقیناً ملکہ بلقیس کو ان کے اختیار کے تابع آ کر حکومت کرنی پڑتی۔ تب میرے قبیلی بھائی پرندے نے کہا، چلو میرے ساتھ، ہماری ملکہ کے شاندار اور پرکیف ملک کو ایک بار دیکھ آؤ۔ اس کا یہ مشورہ سن کر میں نے پہلے جانے سے انکار کر دیا۔ تب میرے دوست پرندے نے کہا، سبا کی خوبصورت عورتوں میں سے ایک سبا کی ملکہ بلقیس بیگم کو ایک بار دیکھ آؤ، وہ کتنی حسین، کتنی طاقتور اور کتنی قابل ہے، یہ دیکھے بنا تم اندازہ نہیں لگا پاؤ گے۔ میرے عزیز رفیق کے لبوں سے اس کی ایسی تعریف سن کر میں اسے دیکھنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ طویل سفر کے بعد میں سبا سلطنت کی دارالحکومت پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے شاہی محل کی ایک دیوار پر بیٹھ کر نظارہ کیا۔ تب میں نے ملکہ بلقیس بیگم کو دیکھا، وہ بے حساب حسن کی مالک تھی، وہ کمباری تھی اور ایک عظیم بیش قیمتی تخت پر جلوہ افروز تھی۔ ان کا حسن دیکھ کر میں حیرت میں ڈوب گیا۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا شروع کر دیا کہ شاہنشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں اپنی اہلیہ بنا لے۔ میں نے عرض کیا، یا شاہنشاہ، اب مجھے میرا انعام عطا کریں، میں ایسا انعام چاہتا ہوں جو میری نسل کے لیے عزت و شرافت کی علامت بن کر رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات سن کر فرمایا، اگر جو تم کہہ رہے ہو وہ حق ہے تو بے شک تمہیں اس کا انعام ملے گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ تصدیق کروں گا کہ تم سچے ہو یا جھوٹے۔ اگر تم اپنی خبر میں سچے ہو تو میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گا کہ تمہارے سر پر ایک یادگار تاج رکھا جائے، لیکن اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو یقیناً میں تمہیں سزا دوں گا۔ تب ہدہد بولا، یا نبی اللہ، آپ کے سامنے جھوٹ بولنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے، میں نے جو کچھ بھی عرض کیا ہے وہ سب حقیقت ہے۔ حقیقت میں یہ واقعہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور تفصیلات سے بھرا ہے، لیکن میرے چھوٹے سے لبوں سے ملکہ بلقیس کے حسن اور اس کی عظیم سلطنت کا مکمل بیان دینا ممکن نہیں ہے۔ لیکن یا نبی اللہ، ایک بات ہے جو افسوسناک ہے، اور وہ یہ کہ ملکہ بلقیس اور اس کی پوری رعایا آفتاب کی عبادت کرتی ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے بے انتہا افسوس ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی یہ بات سن کر پوچھا، کیا تم نے انہیں سورج کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہدہد بولا، جی ہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ سب سورج کی عبادت کر رہے تھے۔ یا نبی اللہ، شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا ہے، جس کے سبب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حق راستے کو چھوڑ کر آفتاب کی عبادت کو اپنا لیا ہے اور وہ ہدایت سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی یہ بات سن کر فرمایا، یا ہدہد، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایک خصوصی سفیر بنا کر اپنا خط ملکہ بلقیس کے پاس بھیجوں، تم اسے خود وہاں پہنچاؤ گے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ بلقیس اس خط کا کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد بولا، یا نبی اللہ، تو مہربانی کر کے خط لکھ دیجیے، میں فوراً اسے ملکہ بلقیس تک پہنچا دوں گا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط تحریر کرنا شروع کیا۔ انہوں نے خط اس طرح لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط اللہ کے نبی سلیمان کی جانب سے سبا کی ملکہ بلقیس کے نام ہے۔ یا ملکہ بلقیس، فوراً اسلام قبول کر ہمارے پاس آ جاؤ، ورنہ اپنی سلامتی کے لیے تیار ہو جاؤ اور اپنی لشکر کے ساتھ ہم سے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ یہ خط تحریر کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی چونچ میں دے دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اجازت لے کر ہدہد پرندہ وہ خط لے کر روانہ ہوا۔
तवील सफर तय करने के बाद वह सबा सल्तनत की दारुल हुकूमत पहुंचा। फिर वह शाही महल गया और देखा कि मल्लिका के खुसूसी महल के सातों दरवाजे बंद थे, सिर्फ रोशनदान खुले हुए थे। तब हुदहुद रोशनदान के रास्ते अंदर दाखिल हो गया। वह आहिस्ता आहिस्ता महल के अंदर पहुंचा और देखा कि मल्लिका बिल्किस गहरी नींद में थी। तब हुदहुद परिंदे ने बहुत एहतियात से वह खत मल्लिका के सीने पर रख दिया और फिर रोशनदान से बाहर निकलकर वहां से चला आया। इसके बाद हुदहुद परिंदा सबा सल्तनत से लौटकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और अर्ज किया, या नबी अल्लाह, मैंने आपका खत आपकी अमानत के तौर पर मल्लिका बिल्किस तक पहुंचा दिया है। उधर जब मल्लिका बिल्किस नींद से बेदार हुई तो उन्होंने अपने सीने पर एक खत पाया और हैरान रह गई। फिर उन्होंने खत खोला और उसे पढ़ना शुरू किया। खत पढ़ने के बाद वह गहरी फिक्र में डूब गई। आखिर यह खत उनके पास गैबी तौर पर कैसे पहुंचा? उन्होंने तो किसी को आते जाते नहीं देखा, खासकर तब जब 7 महलों के तमाम दरवाजे बंद थे। यह खत यहाँ कैसे आया? दूसरी बात, खत का पैगाम बहुत संगीन और तंजीही था। मल्लिका ने खत के मजमून को समझकर खौफ और फिक्र में मुब्तला हो गई। उन्होंने फौरन अपने वजीरों और उमराए दरबार को बुलाने का हुक्म दिया। इमरजेंसी पैगाम पाकर उनके दरबारी शाही महल में हाजिर हुए। जब तमाम दरबारी जमा हो गए तो मल्लिका बिल्किस ने उन्हें खत दिखाया और खत के मजमून के मुताबिक उन्हें क्या करना चाहिए इस पर मशविरा मांगा। खींचुरा के अरकान में से कुछ ने कहा, हम अपनी फौज को जमा करेंगे और सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग करेंगे। कुछ ने कहा, जंग करना मुमकिन नहीं है, वह बेहिसाब ताकत के मालिक हैं, हम उनके साथ जंग करके कुछ घंटों तक भी कायम नहीं रह पाएंगे। फिर कुछ ने कहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के आगे तस्लीम हो जाना ही सबसे महफूज रास्ता है। तमाम की बातें सुनने के बाद मल्लिका बिल्किस बोली, मेरा ख्याल यह है कि उनके साथ जंग करके हमारा महफूज रहना नामुमकिन है। जहाँ तक मैंने उनके बारे में सुना है, वह जिस भी मुल्क में हुकूमत करने दाखिल होते हैं वहाँ सब कुछ तबाह कर देते हैं। ऐसे में उनके गजब का निशाना बनने के बजाय अक्लमंदी यही होगी कि पहले उन्हें नजरो नियाज भेजे जाएं। जब हमारा सफीर वापस लौटे तो हम देखेंगे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इस पर क्या रद्द अमल देते हैं, क्योंकि अगर वह वाकई अल्लाह के नबी हैं तो वह नजरो नियाज पाकर और ज्यादा नाराज हो जाएंगे और बार बार यही चाहेंगे कि हम सब उनके सामने तस्लीम हो जाएं। लेकिन अगर वह सिर्फ इस दुनिया के एक मामूली बादशाह हैं तो वह इन तोहफों को पाकर राजी हो जाएंगे। जब मल्लिका बिल्किस ने यह बातें कही तो उनकी शूरा के तमाम अरकान इस मशवरे से मुत्तफिक हो गए। मल्लिका बिल्किस ने तोहफे भेजकर यह मालूम करने का मंसूबा बनाया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह के नबी हैं या नहीं, क्योंकि अगर वह नबी हुए तो वह इन तोहफों को हरगिज कबूल नहीं करेंगे। वह मल्लिका पर इस्लाम का कबूल करने के लिए जोर देंगे और अगर वह सिर्फ एक सल्तनत के हाकिम हैं तो वह तोहफे कबूल करके मल्लिका को निकाह का पैगाम भेजेंगे। इसके बाद मल्लिका बिल्किस ने अपने लश्कर में से एक दस्ते को मुंतखब किया और उन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजने के लिए नजरो नियाज सौंपे। तोहफे के तौर पर मल्लिका बिल्किस ने उन्हें 7 सोने की और 7 चांदी की ईंटें अता की, साथ ही नायाब मोती, जवाहरात और दूसरे कीमती पत्थर दिए। इसके अलावा उन्होंने तमाम तोहफों को सोने के धागों से बुने हुए कपड़े से ढककर शीशे के संदूकों में रखवाया। इसके बाद वह सफीर मल्लिका बिल्किस से रुखसत होकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शाही दरबार की तरफ रवाना हुए। उन्होंने सहारा का रेगिस्तान पार किया और धीरे धीरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में दाखिल हुए। उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर मुंतसिब थे। उनके सामने 1000 बुजरा बैठे थे और उनके बराबर में लश्कर, महफूजी दस्ते, पैदल सिपाही और जिन्न, परियां, दीव, दैत्य अपने अपने मुकामात पर खड़े थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म और हिदायत के मुंतजिर थे। इसी वक्त एक खादिम ने आकर इत्तिला दी कि मल्लिका बिल्किस ने तोहफों के साथ अपने सफीरों को भेजा है। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि वह सफीर अंदर आ सकते हैं। सफीर आगे बढ़े और देखा कि शाही महल की दीवारें, छत और हर चीज सोने और चांदी से बनी हुई है। इसके अलावा तख्त के चारों तरफ कीमती पत्थरों से शानदार नक्काशी की गई थी। शाही महल की इस अजीमुशान फनकारी को देखकर उन सफीरों को अपने लाए हुए तोहफे इंतहाई मामूली लगे, जिससे वह बहुत शर्मिंदा हो गए और वह इतने शर्मसार हुए कि आगे बढ़ने में हिचकिचाने लगे। ठीक उसी वक्त हुदहुद परिंदे ने उन्हें हौसला दिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने आगे बढ़ने का इशारा किया। इसके बाद वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, उन्हें मुनासिब अदब पेश किया और उनके सामने तोहफे रखे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन तोहफों को देखकर फरमाया, क्या तुम मुझे इन तोहफों से राजी करना चाहते हो? मेरे अल्लाह ने मुझे इससे कहीं ज्यादा अता फरमाया है। इन तोहफों को वापस ले जाओ और अपनी मल्लिका से कहो कि अगर उसने इस्लाम कबूल करने से इनकार किया तो मैं अपनी फौज के साथ हमला करूंगा, जिससे उसकी पूरी सल्तनत तबाह हो जाएगी और वह सब अपने तख्त से महरूम हो जाएंगे। इसके बाद सफीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शाही दरबार से रुखसत होकर धीरे धीरे मल्लिका बिल्किस के शाही दरबार की जानिब लौटने लगे। मल्लिका बिल्किस के पास पहुंचकर सफीरों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तमाम तशरीहात बयान की
और उनके शाही दरबार की शान और शौकत और अजमत का तफसील से जिक्र किया। तब मल्लिका बिल्किस ने कहा, वो मुझसे कहीं बड़े सुल्तान हैं और निहायत कुदरत वाले भी। उनसे जंग करना मेरे और मेरी सल्तनत के लिए नामुमकिन है, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना मुनासिब नहीं होगा, बल्कि पहले यह देखना जरूरी है कि क्या वह वाकई अल्लाह के नबी हैं। इसके लिए हमें उनकी तरफ से कुछ मौजिज़ात देखने चाहिए। यह सोचकर उन्होंने अपने मुजरा से कहा, मैं उनकी आजमाइश लेने के लिए दोबारा कुछ खास चीजें भेजना चाहती हूँ। मल्लिका बिल्किस की इस बात से तमाम मुजरा मुत्तफिक हो गए। इसके बाद मल्लिका ने कुछ गुलाम और लौंडियों को एक जैसे लिबास पहनाए, कुछ बेशिगाफ याकूत नगीनों को एक संदूक में रखवाया, कुछ तेज और कुछ सुस्त अश्व घोड़े भेजने का इंतजाम किया और आखिर में एक खाली शीशा दिया। इसके बाद उन्होंने सफीरों से कहा, पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहो कि वह इन गुलामों और लौंडियों को अलग अलग पहचान कर दिखाएं, फिर बगैर किसी फौलादी या दूसरे आलात के इस्तेमाल के, और याकूत में शिगाफ सुराख उगकर दिखाएं। तीसरे, तेज और सुस्त अश्व को अलग अलग कर दें, और आखिर में इस खाली शीशे में ऐसा आब पानी भर कर दें जो न आसमान से बरसता हो और न जमीन से निकलता हो। जब मल्लिका बिल्किस की तमाम शराइत तय हो गई तो उनके सफीर उन तमाम चीजों को लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शाही दरबार की तरफ रवाना हुए। वह सहरा के रेगिस्तान को पार करते हुए धीरे धीरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शाही दरबार में दाखिल हुए और तमाम तोहफे पेश किए। इसके बाद सफीरों ने मल्लिका बिल्किस के तमाम इम्तिहानी शराइत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने रखी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले तमाम गुलामों और लौंडियों को हुक्म दिया कि वह जाकर वुजू करें। तब मर्दों ने सिर्फ अपनी उंगलियां धोई जबकि औरतों ने अपनी कलाइयां तक धोई। इसी दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, जिन्होंने सिर्फ उंगलियां धोई हैं वह मर्द हैं और जिन्होंने कलाइयों तक धो लिया है वह औरतें हैं। और इसके बाद याकूत को जमीन पर रख दिया गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खास किस्म के कीड़े को हुक्म दिया कि वह उन नगीनों में शिगाफ कर दे। तीसरे इम्तिहान में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अश्वों के सामने चना और घास रखवाई और देखा गया कि सुस्त अश्व जल्दी जल्दी चना खाने लगे जबकि तेज अश्व थोड़ी देर तवक्कुफ करने के बाद घास खाने लगे। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तेज और सुस्त अश्वों के बीच का फर्क वाज़ेह कर दिया। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस खाली शीशे को लाने का हुक्म दिया। तब सफीरों ने वह खाली शीशा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इस खाली शीशे का क्या करूं? तब दूतों ने कहा, इस बोतल में आप ऐसा पानी भरें जो न आसमान में पाया जाता है और न ही धरती पर। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक घोड़ा मंगवाने का आदेश दिया। फिर एक घोड़ा लाया गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक व्यक्ति को उस पर बैठाकर कहा, अत्यंत तेज गति से इसे दौड़ाओ। वह व्यक्ति घोड़े को तेजी से दौड़ाने लगा और काफी समय तक घुड़सवारी करने के बाद वापस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास लौटा। तेज दौड़ने के कारण वह घोड़ा पूरी तरह पसीने से भीग गया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस घोड़े के पसीने को बोतल में भर लिया और कहा, यह वही पानी है जो न आसमान में पाया जाता है और न ही जमीन पर। भाई, रानी बिल्किस के भेजे गए सभी दूत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस चमत्कार और उनकी महान बुद्धिमत्ता को देखकर दंग रह गए। वे तुरंत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार से विदा लेकर रानी बिल्किस के दरबार की ओर रवाना हो गए। इसके बाद वे रानी बिल्किस के पास पहुंचे और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सभी चमत्कारों और उनकी ज्ञान व हिकमत को विस्तार से बयान किया। दूतों से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज्ञान, हिकमत और चमत्कारों के बारे में सुनकर रानी बिल्किस तुरंत कह उठी, निश्चय ही मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जाऊंगी और उनके हाथ में हाथ देकर इस्लाम स्वीकार कर लूंगी। इसके बाद रानी बिल्किस धीरे धीरे अपनी यात्रा की तैयारी करने लगी। सबसे पहले उन्होंने अपने दरबार के मंत्रियों को आदेश दिया कि उनका सिंहासन 7 महलों के अंदर रखा जाए और सभी दरवाजे बंद कर दिए जाएं। रानी बिल्किस के हुक्म का पालन करते हुए उनके सेवकों ने सिंहासन को 7 महलों के अंदर रख दिया और 7 दरवाजों को ताले से बंद कर दिया। इसके बाद रानी बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की ओर यात्रा पर निकली। उनके साथ 100 दास दासियां और असंख्य सैनिक थे। उन्होंने सहारा रेगिस्तान पार करना शुरू कर दिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के राज्य की ओर बढ़ने लगी। उधर हवा ने तुरंत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को रानी बिल्किस के रवाना होने की सूचना दे दी। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार को और अधिक भव्य बनाने का आदेश दिया। उनके आदेश पर उनके दरबार में मौजूद सभी जिन्नों ने राजमहल को और अधिक सुंदर और सुसज्जित बना दिया। इससे पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में कुछ जिन्न यह सूचना दे चुके थे कि रानी बिल्किस कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि चीन जाति की एक प्रा आगे जाए। दूतों से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज्ञान, हिकमत और चमत्कारों के बारे में सुनकर रानी बिल्किस तुरंत कह उठी, निश्चय ही मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जाऊंगी और उनके हाथ में हाथ देकर इस्लाम स्वीकार कर लूंगी। इसके बाद रानी बिल्किस धीरे धीरे अपनी यात्रा की तैयारी करने लगी। सबसे पहले उन्होंने अपने दरबार के मंत्रियों को आदेश दिया कि उनका सिंहासन 7 महलों के अंदर रखा जाए और सभी दरवाजे बंद कर दिए जाएं। रानी बिल्किस के हुक्म का पालन करते हुए
उनके सेवकों ने सिंहासन को 7 महलों के अंदर रख दिया और 7 दरवाजों को ताले से बंद कर दिया। इसके बाद रानी बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की ओर यात्रा पर निकली। उनके साथ 100 दास दासियां और असंख्य सैनिक थे। उन्होंने सहारा रेगिस्तान पार करना शुरू कर दिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के राज्य की ओर बढ़ने लगी। उधर पवन हवा ने तुरंत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को रानी बिल्किस के रवाना होने की सूचना दी।